Yes, good morning, dear students. So, today onwards, I'm taking all of your serious mathematics. The mathematics, all of you, the syllabus part, correct? You have algebra, trigonometry, coordinate geometry, then mensuration, all the basic mathematics, up to 10, and little bit of 11th standard, correct? Basic in trigonometry, we require some information of standard 11 there. Fine. So, in CDS maths, this is the place where you can score maximum, correct? Here, the mathematics part is simple, not so difficult. What is very important it is that you have to be in touch. That means the topic, the concept, everything, it has to be in a fresh way. मीन्स आपको पूरी बातें बिल्कुल याद हो जानी चाहिए, पुरानी बातें जो 9th 10th 11th में बेसिक सीखा था वो सारी बातें रिकॉल कराना, दैट इज़ आवर पर्पस. एंड व्हेन यू सॉल्व सम बेसिक क्वेश्चंस, those the type it generally comes in CDS, then you will find confidence in this mathematics there. So with this note, I'm going to start the first area I'm taking in mathematics, which is trigonometry dear. Trigonometry. See, this is interesting as well, and I believe a lot of students are well versed with basic of trigonometry, but still I'm doing basics in trigonometry here. See, trigonometry means in a right angle triangle, A, B, C, correct? These are three sides and these are three angles. Fine. And this is your 90-degree right angle triangle at B. Correct. So let's say we have any angle theta here. Then in trigonometry, we have six relationship between in these three sides. Correct. So that is why we generally say trigonometry, the measurement of all three sides, including angles also. So we have six relationship between these three sides, and therefore we have six trigonometric ratios, correct? The first one is, we call it as a sine theta, where this is in trigonometry, this is perpendicular, this is hypotenuse, and this is base, correct? And the Pythagoras theorem says h square equals to p square plus b square, correct? This is what Pythagoras theorem says in a right angle triangle. So these six ratios, in which the first ratio is sine theta. Sine theta says p upon h, perpendicular upon hypotenuse. Cos theta is nothing but base upon hypotenuse, correct? This base upon hypotenuse, because angle I took this theta. So for this angle theta, we have the base is BC, fine, and perpendicular is this one, AB, which is height. Then we have tan theta, which is perpendicular upon base. Basically, when you divide sine by cos, you will get P by B also. So tan theta, we came to know this is sine by cos theta also. Fine. So sine theta P by H, cos theta B by H, and tan theta P by B. Fine. In a right angle triangle. Once you flip it, which means we have, if h upon p, then a ratio which is named as cosec theta, which is h upon p there. ठीक है, ये h upon p हो जाता है. Similarly, sec theta, this is sec theta, which is h upon b, means ये cos का opposite होता है. And cot theta, which is b by p, correct? tan का opposite. तो हम इससे एक रिलेशनशिप पे कंक्लूजन पे आए कि अगर मैं साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा करूं, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, so this is going to be 1. Fine. Look at this, p by h and h by p. P get cancelled, h also get cancelled. So sine theta into cosec theta is 1. Or you can write sine theta equals to 1 upon cosec theta, correct? Or you can write cosec theta equals to 1 by sine theta.
जैसा डिमांड होगा क्वेश्चन के अंदर उस अकॉर्डिंग हम कॉसिक को साइन में और साइन को कॉसिक में कन्वर्ट कर सकते हैं। क्लियर टिल हियर? चलिए आगे बढ़ते हैं डियर। थोड़ा केयरफुली देखते जाओ, बहुत पुरानी चीज़ है, बेसिक चीज़ें हैं, ये तो हमें ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट है, समझ के ही लेना होगा। cos theta which is 1 by sec theta, fine, or you can say sec theta is 1 by cos theta. How it came? Again what I will say here कि अगर मैं sec theta into cosec theta करता हूँ I am getting 1. ठीक है, look at this. Sec theta we have b by p. This sec theta is b by p, sorry b by h it should be, है ना, b by h. This should be b by h. And cos theta, sorry h by b करो यार, h by b. I will write again h upon b. और ये cos theta क्या है? b by h. ठीक है, तो cos into sec क्या हो गया डियर? It came 1. So cos into sec theta 1, so cos theta is 1 by sec theta, or sec theta is 1 by cos theta we can write. Similarly, tan theta into cot theta, this is going to be 1. Look at this, p by b and b by p, मिल जाएगा 1 अपने को. Now we have tan theta which is 1 upon cot theta we can write, and cot theta we can write 1 upon tan theta. Fine. So ये हमने अभी बेसिक 6 रेशियोज जो साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक है उनके वैल्यूज इन अ राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होते हैं दैट वी केम टू नो, और उनके बीच इंटर रिलेशनशिप साइन थीटा इंटू कॉसिक विच इज़ 1, कॉस थीटा इंटू सेक विच इज़ 1, फाइन, tan theta into cot theta that is also 1. Correct? So this much basic information I believe all of you remember, और नहीं है तो इसको जस्ट रिकैप कर रहे हैं हम यहाँ पे. करेक्ट? नाउ आई एम मूविंग फर्दर. लुक एट दिस, दीज आर बेसिक वन. तो अब मैं इसमें आगे बढ़ रहा हूँ ऐसे डियर कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्मूला यहाँ पे और भी कई ट्रिग्नोमेट्रिक रिजल्ट है, जैसे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, दिस इज गोइंग टू बी 1. ठीक है, दिस इज व्हाट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट. यहाँ से आप साइन स्क्वायर थीटा के लिए क्या निकाल सकते हैं? यू विल हैव 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और इफ इट इज कॉस स्क्वायर थीटा so you can say 1 minus sin square theta. Fine. So 1 minus cos square is sin square, and cos square is 1 minus cos square is sin square, and 1 minus sin square is cos square theta. ये तो इम्पॉर्टेंट है ही दोनों, और ये तीनों. अब आपको सीडीएस में कैसे याद होता है कि सीडीएस के प्रॉब्लम के अंदर जब आप ये रिजल्ट याद है, एब्सोल्युटली करेक्ट, वेल डन. बट मेरा क्या सजेशन है कि गो विथ लाइक दिस वे, दैट साइन थीटा इज रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. ऐसे दिमाग में रखिए आप. फाइन. तो आपको अननेसेसरी विल सेव टाइम वेस्ट नहीं होगा. साइन स्क्वायर से ये निकालो फिर रूट भेजो. तो साइन थीटा इज रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा. व्हाट अबाउट कॉस थीटा? Cos theta also we can write 1 minus sin square theta. ठीक है, तो इट्स योर कॉल कि अगर आप ये तीनों तो याद है, ये भी अगर दिमाग में सेट हो जाता है देन इट इज बल्ले बल्ले. करेक्ट? सो नाउ सो वी हैव सीन दिस वन रिजल्ट हैव अनदर 3 रिजल्ट, sin square theta plus cos square theta 1. ये थीटा और थीटा सेम होने चाहिए. ठीक है, हमेशा याद रखिए sin square theta plus cos square theta. जैसे मैंने लिख दिया साइन स्क्वायर 23 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 23 डिग्री, दोनों की वैल्यू, इसकी वैल्यू क्या होगी? 1, बिकॉज थीटा एंड थीटा शुड बी सेम, देन द वैल्यू इज 1. करेक्ट? सो सेंस आपको होना चाहिए कि ये फॉर्मूला का पर्पस क्या है, तो टू गेट अ वैल्यूज ऑफ दीज डिग्रीज. करेक्ट? सो आई बिलीव अप टिल हियर you came to, all of you well versed. So now I am moving to another set of results in a right angle triangle. See, all these results we are getting from only right angle triangle. Now we have next result is 1 plus tan square theta, which is nothing but sec square theta. Correct? This is 1 plus tan square is sec square theta. Fine. यहाँ से आप
ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, टैन स्क्वायर को इधर ले आया आपने, सो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर बिकम्स सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इज 1। करेक्ट, तो ये आपको याद रखना ही है, दिस इज इंपॉर्टेंट वन। सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा क्या होती है, 1। अब यहाँ से फिर मैं बोलूँगा CDS के लिए, CDS के प्रिपरेशन करते समय इस रिजल्ट को थोड़ा और मॉडिफाई करते हैं। किस तरीके से, अगर मैं सेक स्क्वायर थीटा को सेक थीटा प्लस टैन थीटा ऐसा लिख सकता हूँ इनटू सेक थीटा माइनस टैन थीटा, करेक्ट, इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा आई कैन राइट 1 अपॉन सेक माइनस टैन थीटा ऑल्सो। ठीक है, तो अगर ये आपको दिमाग में रहता है, ये सेक थीटा प्लस टैन थीटा इज 1 अपॉन दिस, देन CDS में बहुत अच्छे सम्स भी आप इजीली कर पाते हैं। या फिर आप इसको ऐसा कर सकते हैं कि सेक थीटा, got it, minus tan theta, this you can write 1 upon sec theta plus tan theta also, correct? So ये तो आपको पता है कि 1 plus tan square is sec square theta. Well, very good. 1 plus tan square is sec square theta. Then again we came to know that sec square minus tan square is 1. फिर फर्दर आपने थोड़ा एक्सटेंड किया अपने आप को कि यस वाई नॉट, ये भी जानना चाहिए अपने को, सेक थीटा प्लस टैन थीटा इंटू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी में स्प्लिट किया, तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा को मैं 1 अपॉन सेक माइनस टैन भी लिख सकता हूँ, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा को 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। सो each and every result came from this result, 1 plus tan square which is sec square theta, correct? तो आप इन सबों को थोड़ा एडिशनल दिमाग में रखिए, सो दैट आप देखेंगे आगे डाउन द लाइन जब क्वेश्चंस बनेंगे दिखेंगे, तो इन सब रिजल्ट का बहुत इंपॉर्टेंस मिलेगा अपने को CDS के क्वेश्चन में। ठीक है डियर, चलिए अगेन वी हैव सेट ऑफ रिजल्ट्स, लुक एट दिस, नाउ आई एम मूविंग another set of result which is this we have 1 plus cot square theta, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल के साथ ही हो रहा है, दिस इज नथिंग बट कॉसेक स्क्वायर थीटा, करेक्ट? सो यहाँ से भी हम एक नया रिजल्ट बना सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, दिस इज गोइंग टू बी 1, करेक्ट? सो ये हमारा स्टैंडर्ड रिजल्ट हुआ, 1 प्लस कॉट स्क्वायर, आपको क्या याद रहना चाहिए, विच इज कॉसेक स्क्वायर थीटा, फिर वहाँ से आप कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर यू कैन मेक 1, यहाँ से फिर मैं वो a प्लस बी ए माइनस बी कर लूँ, सो कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इंटू कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, करेक्ट? दिस इज इक्वल टू 1, फाइन। सो आई कैन राइट कॉसिक थीटा प्लस कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन कॉसिक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये भी लिख सकता हूँ मैं, लाइक यू हैव सीन इन सेक थीटा ऑल्सो। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने सेक थीटा प्लस टैन थीटा, सेक थीटा माइनस टैन थीटा को वैसे ही स्प्लिट किया, ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर ए प्लस बी 1 अपॉन ए माइनस बी, और ए माइनस बी 1 अपॉन ए प्लस बी, करेक्ट? सेम वे वी हैव टू डू हियर ऑल्सो फॉर कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा में। ठीक है, now what we can write, cosec theta minus cot theta, we can write 1 upon cosec theta plus cot theta, correct? तो हमने ये कुछ रिजल्ट्स देख लिए, ठीक है, और मैं जो ये जो एडिशनल रिजल्ट बना रहा हूँ आपके लिए, दीज आर, ये तो बेसिक है, ये तो लर्न रहता ही है बच्चों को, बट दीज रिजल्ट्स आर एडिशनल, दीज रिजल्ट्स विल हेल्प यू टू solve the quickly, it will save your time। अगर आप ऐसे रिजल्ट याद रखते हो तो these results will save your time in your competitive exam, that is what our purpose, to make such shortcut, or you can say the simplest way to when you solve the sum, these factors are very helpful to crack the question, correct? So it's a request to all of you that when you go through these results,
which these what we have marked, these you do it properly, because आप देखोगे सम हमारे इन रिजल्ट पे ज़्यादा बनाए गए होते हैं और पूछे भी जाते हैं, तो आपको कुछ एडिशनल तो याद रखना ही पड़ेगा, because all you are going to enter in a all India level test where you have to be perfect in this area. ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक सारे रिजल्ट क्लियर होने चाहिए, करेक्ट. So we have seen these standard result. Now dear, I will enter to the values. These इतने जो रिजल्ट हैं अभी बेसिक हो गए, अभी और भी रिजल्ट होंगे जो हम सेकंड पार्ट में डिस्कस करेंगे. अब तक के बेसिक रिजल्ट पे हम थोड़ा कुछ काम करेंगे, और ये कुछ डिग्रीज जो हैं वो अपने को याद रखना है, ठीक है. हमारे पास जो वैल्यूज़ हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ये अपने को साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसिक सब में पता रहना चाहिए और याद रहना चाहिए, ठीक है. तो कैसे आता है तो उसमें डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, सीधा आप जीरो यहाँ लिखिए, 0 1/2 1/√2, ठीक है, 1/√2, दिस इज √3/2 √3/2, करेक्ट, एंड दिस इज 1. साइन 0 0, साइन 30 1/2, साइन 45 1/√2, करेक्ट. वेट, इसको थोड़ा मैं इरेज कर दूं, ये थोड़ा गंदा दिख रहा है ना, इसको भी ठीक कर देता हूँ. लुक एट दिस. सो साइन 45 क्या लिखा हमने, 1/√2, और साइन 60 हो गया हमारा √3/2, साइन 91. कॉस की वैल्यू जो है इसको मैं थीटा लिख रहा हूँ, बेसिकली थीटा पे ये डिग्रीज है, ठीक है ना. तो ये 1 यहाँ लिख दीजिए आप, कॉस 0 1 होता है. उल्टे हाथ से चलते हैं, इधर से आप इधर से लिखने लगिए, √3/2, देन 1/√2, देन 1/2, एंड दिस इज 0. कॉस 90 0 होता है. टैन थीटा साइन बाई कॉस होता है, ठीक है. 0/0 0, ठीक है. एनी नंबर को आप 0 को किसी नंबर से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 0. ऑलवेज रिमेंबर, दिस इज एनी नंबर बट नॉट 0, करेक्ट. बट एनी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, ठीक है, सो दिस विल बी इन्फिनिटी. अगेन ये नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ें हैं, याद रहना चाहिए आपको. So now 1/2 upon √3/2, this is 1/√3, tan 30 1/√3, tan 45 1, tan 60 √3, डिवाइड कर लो, और 1/0 नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी आप इसको कह सकते हो. तो ये चार्ट मिनिमम आपको याद रहने चाहिए, ठीक है. लाइक जब अगर हमारे पास कॉसेक आ गया, सेक आ गया, कॉट आ गया, तो यू नो हाउ टू फ्लिप इट, रेसिप्रोकेट कर दीजिए वैल्यूज एंड देन यू विल गेट द वैल्यू, ठीक है. कॉसिक थीटा हो गया या सेक थीटा हो गया या कॉट थीटा हो गया, तो कॉट को रेस्पिकेट कीजिए, टैन की जो वैल्यू होगी उसको रेस्पिकेट कर देने का, ठीक है. तो चार्ट जो है हमारा इतना सफिशियंट है, इतने आपको याद होने ही चाहिए मिनिमम, करेक्ट. ये अपना सेट ऑफ डिग्रीज है. हम कुछ वियर्ड डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, वो हम आगे देखेंगे. अभी आपको इस स्टेज पे 0 30 45 60 90 साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक सबकी वैल्यू पता होनी चाहिए. सपोज मैंने लिख दिया कॉसेक 0 डिग्री, इसकी वैल्यू क्या होगी, ठीक है. तो साइन 0 0 होता है, तो कॉसेक 0 क्या हो गया, 1/0. सो दिस इज इन्फिनिटी, करेक्ट. यू हैव सीन हियर एनी नंबर अपॉन 0 इज इन्फिनिटी. सपोज इट केम सेक 60 डिग्री, तो कॉस 60 क्या होती है, 1/2, उसको फ्लिप कर दिया, 1 सेक 60 1/1/2, ठीक है ना. 1/cos 60 कर दिया, ये क्या बन जाएगा, 2, यानी फ्लिप कर देना है बस. सपोज यू हैव कॉट 60 डिग्री, तो क्या लिख दूंगा आंसर, 1/√3, ठीक है. तो ये सारी बात आपको बेसिक है, ये समझ में आता है आपको कॉसिक 0 डिग्री से कॉट कैसे निकालना है. उसको रेसिप्रोकेट कर दीजिए, और जो टैन में साइन में कॉस में जो वैल्यू है दैट यू राइट, करेक्ट. तो ये मिनिमम अपने को डिग्रीज इतने आने चाहिए. चलिए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम. अब हम आते हैं यहाँ पे रेडियन और डिग्री का कंसेप्ट, ये थोड़ा ध्यान में रखिए, रेडियन एंड डिग्री, ठीक है. ये भी CDS का एक बड़ा डिमांडिंग एरिया है. कैसा होता है, रेडियन जो यूज़ है ये हम करते हैं एप्लीकेशन में.
एप्लीकेशन करते समय ये रेडियन का यूज होता है ट्रिग्नोमेट्री या किधर भी। डिग्री इज एन एंगल के फॉर्मेट में देखा जाता है। तो अगर मुझे डियर 30 डिग्री को रेडियन बनाना, मैं पहले सीख रहा हूँ डिग्री टू रेडियन बनाना, ठीक है। तो अगर 30 डिग्री को मुझे रेडियन बनाना है तो इसका फॉर्मूला होता है 30 इंटू पाई बाय 180 कर दीजिए, और रेडियन को हम ऐसा सी से लिखते हैं, ऊपर यहाँ पे सी डाल दीजिए, या नहीं भी लिखे तो भी चलेगा। ये कितना हो गया, पाई बाय 6, ठीक है। तो 30 डिग्री इज नथिंग बट पाई बाय 6। अगर आप मुझे 45 डिग्री चाहिए तो क्या कर लेंगे आप, 45 इंटू पाई बाय 180, ये समवेयर 45 4 जा 180 होता है, सो इट विल कम पाई बाय 4। तो डिग्री को रेडियन में हमने कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। एनी डिग्री, लेट्स से सपोज मेरे पास 3600 डिग्री है, इसको हमें रेडियन में बनाना है, तो क्या करोगे आप, दिस वी हैव टू कन्वर्ट टू रेडियन में चाहिए। तो मैं इसको 3600 इंटू पाई बाय 180 लिखूंगा, और ये पूरी रेडियन में बैठेगी, सी लिखो या नहीं लिखो चलता है। सो दिस इज गोइंग टू बी 18 2 जा यानी 20 पाई। सो 3600 डिग्री कितनी होगी, 20 पाई, करेक्ट। तो ये हमारा हो गया डिग्री टू रेडियन, ठीक है। डिग्री से मैंने रेडियन चेंज किया। फॉर्मूला ऐसे भी होता है, 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन, ठीक है। दिस इज व्हाट स्टैंडर्ड फॉर्मूला हम कहते हैं। मैंने जान के सीधा डिग्री 30 45 ऐसे ले लिया, ठीक है। 60 डिग्री कितनी हो जाएगी, पाई बाई 3, 60 डिग्री इज पाई बाई 3। 90 डिग्री कितनी हो जाएगी, पाई बाई 2, करेक्ट। तो आई बिलीव ये डिग्री टू रेडियन इज, आई बिलीव यू अंडरस्टूड, फाइन। अब मैं जा रहा हूँ डियर रेडियन टू डिग्री, ठीक है। अब रेडियन से डिग्री हम कन्वर्ट करेंगे, रेडियन टू डिग्री, रेडियन से हम डिग्री की ओर जाते हैं। सपोज वी हैव रिटन 5 पाई बाई 12, ठीक है। ये रेडियन है, इसको हमें डिग्री बनाना है। तो यहाँ पे मैं इसको एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला में बोलूँ, 1 रेडियन इक्वल्स टू 1/180 बाई पाई डिग्री होता है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड रिजल्ट है, रिलेशनशिप है रेडियन और डिग्री का। उल्टा वहाँ पे देखा आपने, उल्टा वहाँ क्या देखा आपने, देखो रिलेशन 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई बाई 180 रेडियन, ठीक है। सो दीज टू रिलेशन में क्या आपको डिफरेंस दिख रही है, जस्ट अपोजिट दिख रहा है ना, ठीक है। लुक एट दिस वन इज पाई बाई 180 रेडियन, हियर इट इज 1/80 पाई 180 अपॉन पाई डिग्री। सो 5 पाई बाई 12 को 5 पाई बाई 12 इंटू क्या लिख देंगे, 180 अपॉन पाई, ठीक है। और ये जो भी अंदर कैलकुलेट होके आएगा वो डिग्री में चेंज होगा। सो पाई गेट कैंसिल, 12 15 जा 15 5 जा 75 डिग्री, ठीक है। रेडियन को जैसे यहाँ पे मैं बोला कि पाई बाय 4, आप सी क्यों नहीं लिखते, लिखो या नहीं लिखो, बात इज सेम, ठीक है ना। और डिग्री में तो यू हैव टू कंपल्सरी राइट अ डिग्री, फाइन डियर। तो you came to know how to convert radian to degree. Let's say I have 33 pi by 4 and we want how much degree it is. क्या करेंगे आप, 33 pi by 4 into 180 upon pi, and this is equal to डिग्री जो भी आएगी कैलकुलेशन होके, पाई गेट कैंसिल, 4 into 45, ठीक है। एंड 45 इंटू 33 कर लीजिए, 45 इंटू 33, दिस इज गोइंग टू बी 135, ठीक है, 5841। सो दिस इज गोइंग टू बी 1485 डिग्री, फाइन। सो दिस वे वी कैन चेंज रेडियन टू डिग्री, फाइन। सो डिग्री टू रेडियन एंड रेडियन टू डिग्री, आई बिलीव यू अंडरस्टूड, करेक्ट। चलिए, तो हमने अभी तक ये डिग्री टू रेडियन देखा, रेडियन टू डिग्री देखा, एंगल्स देखे, वैल्यूज इसके साइन कॉस टैन कॉट सेक के, करेक्ट। तो यहाँ पे हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को, ये फॉर्मूलाज हमने देखे, ठीक है।
तो अब हम कुछ बेसिक प्रॉब्लम्स के साथ एंटर करते हैं। वी स्टार्टेड विथ ट्रिग्नोमेट्री। आई बिलीव मैं धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहा हूँ, आप एक बार फिर से चीज़ों को रिकैप कर लीजिए। ठीक है, लुक एट दिस। फॉर्मूलाज को देखते चले जाइए डियर। एक बार दिमाग में बैठ गया तो ये फॉर्मूलाज निकलेंगे नहीं आपके दिमाग से। सी यहाँ पे मैंने नंबर को नॉट इक्वल टू जीरो दिया। अगर आप बोलेंगे कि जीरो अपॉन जीरो क्या होगा, तो ये नॉट डिफाइंड ही होता है। इसको इनडिटर्मिनेट कहते हैं, नॉट डिफाइंड। ये इसकी वैल्यू आज तक पता नहीं है किसी को। इन्फिनिटी नहीं बोलेंगे इसको, वी कांट से इन्फिनिटी, इट्स वी कॉल इट एज ए इनडिटर्मिनेट। इनडिटर्मिनेट, इसकी वैल्यू अभी तक किसी मैथमेटिशियन को नहीं पता है। जीरो बाई जीरो होता है, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी। These values are still in research process. Then you have seen radian to degree, how to convert degree to radian, correct? 30 degree formula ये दिमाग में रखना है अपने को। And then you have seen radian to degree, correct dear? So now अब हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं, कुछ बेसिक क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो CDS में पूछी जाती है, करेक्ट? वो थोड़े बेसिक, देन वी विल गो टू अ सेकंड पार्ट ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्री। अभी हम फर्स्ट पार्ट में बेसिक प्रॉब्लम्स को समझ के लेंगे। ठीक है, लुक एट दिस। सपोज हमारे पास क्वेश्चन है डियर कि हमें कुछ वैल्यूज चाहिए, ठीक है ना, वैल्यूज निकालना हो। क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ, ठीक है, ये CDS में आया हुआ क्वेश्चन है, इफ tan थीटा इक्वल्स टू 4/3, then the value of root 1 minus sin theta upon 1 plus sin theta, करेक्ट? इसकी वैल्यू अपने को चाहिए। ऑप्शंस दिए हुए 2/3, फाइन, -1/3, then we have 1/3, करेक्ट, एंड 3/4। ये वैल्यूज है। क्या चाहिए अपने को? 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा की वैल्यू। तो सोल्यूशन करते समय आप tan थीटा, इमीडिएटली आप राइट एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, tan थीटा, दिस इज थीटा, tan थीटा का मतलब p विच इज 4, b विच इज गिवन 3, तो h क्या निकल के आ गया? h इज रूट अंडर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, ये अपने को 5 मिल गया, सो h इज 5। नाउ अपने को डिमांड में क्या है? साइन थीटा। साइन थीटा क्या होगा? p/h। p अपने पास क्या है डियर? 4। h क्या निकाला आपने? 5, करेक्ट? तो साइन थीटा 4/5। तो अब आप अपने डिमांड पे आ जाते हैं। देयरफॉर रूट ऑफ 1 माइनस साइन थीटा क्या है डियर? 4/5, एंड डिनोमिनेटर में क्या है? 1 प्लस 4/5, फाइन। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करें, दिस इज गोइंग टू बी 1/9 एंड दिस इज नथिंग बट 1/3। ठीक है, अब यहाँ पे चक्कर ये होता है कि आप क्वेश्चन में आंसर कौन सा लिखने वाले हैं? +1/3, -1/3, ठीक है, दैट इज व्हाट अ क्वेश्चनेबल। यहाँ पे बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है कि सर व्हाट शुड बी द आंसर, यहाँ +1/3 ले या 1/3। अंडरस्टूड? तो यहाँ पे आपने क्या लेना है? पॉजिटिव 1/3। दिस इज गोइंग टू बी द आंसर। सी द क्वेश्चन इज कि यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है कि सर आपने पॉजिटिव ही क्यों लिया? ठीक है ना, पॉजिटिव ही क्यों लिया? अगर आप देखो साइन थीटा की वैल्यू अगर रूट में भी ले जाके करोगे तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर के हिसाब से भी करोगे तो भी ये पॉजिटिव ही आएगा। और यहाँ पे उन्होंने क्वाड्रेंट नहीं मेंशन किया है, ठीक है ना,
अभी क्वाड्रेंट सिस्टम पे आगे बढ़ेंगे जब हम 0 से 90 के आगे जब बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप क्या कह रहे हैं, साइन थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1/3 और विच शुड बी पॉजिटिव। सो 1/3 इज द करेक्ट आंसर। ऑल्दो आपके मन में चल रहा होगा सर रूट दिख रहा है, रूट है तो प्लस माइनस दोनों आना चाहिए, प्लस माइनस 1/3 दोनों ही आना चाहिए, बट नो, इट शुड बी पॉजिटिव 1/3 लेंगे आप, ठीक है। डोंट टेक नेगेटिव 1/3, फाइन, क्योंकि यहाँ पे उन्होंने क्वाड्रेंट मेंशन नहीं किया है। अगर क्वाड्रेंट मेंशन कर देता कि थीटा हमारा लेट्स से ग्रेटर देन π/2, इनफैक्ट मान लो आप 3π/2 और लेस देन 2π, तब हमने क्वाड्रेंट का साइन कन्वेंशन देखना पड़ता है, ठीक है। तो इस सब में ये चीज़ नहीं मेंशन है, तो आप पॉजिटिव 1/3 लिख देंगे, करेक्ट। इस क्वेश्चन के साथ कई बच्चों को कंफ्यूजन होती है कि सर यहाँ तो क्वाड्रेंट नहीं मेंशन किया है तो बाय डिफॉल्ट क्या वैल्यू लिया जाए रूट का, तो आप पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक है। गुड, नाउ लुक एट द नेक्स्ट सिचुएशन देयर। ये बेसिक क्वेश्चन था। इसी तरीके से कई क्वेश्चन आपको दिखाई देंगे। जैसे मैंने एक सम लिया, ये भी CDS को आया हुआ सम है डियर। इफ tan थीटा इज इक्वल टू a/x, then tan theta is a/x, then x upon root over a square plus x square will be ये क्या होगी। ऑप्शन में दिया हुआ है cos थीटा, करेक्ट, sin थीटा, we have cosec theta also, and finally sec theta, correct. So look at this, how we'll proceed for this sum. So tan theta is a/x, ठीक है। अब हम इस tan theta की a/x और यहाँ x अपॉन दिस सिचुएशन है, तो या तो आप x इक्वल्स टू a tan theta निकाल लें, ठीक है। तो मैं इस रिलेशन से x इक्वल्स टू क्या निकाल सकता हूँ, x इक्वल्स टू a अपॉन tan theta, और a अपॉन tan थीटा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/tan क्या होता है, cot थीटा, करेक्ट। x आई केम टू नो a cot थीटा, ठीक है। अब मैं अपने क्वेश्चन पे आता हूँ, x अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, x की वैल्यू यहाँ डालेंगे हम, a cot थीटा, फाइन, अपॉन रूट ओवर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा, ऐसा लिख सकते हैं हम, क्योंकि x इज a cot थीटा हमने कलेक्ट किया है। और नाउ a cot थीटा अपॉन, सी यू कैन टेक a स्क्वायर कॉमन, सो a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा तो इट बिकम्स a, इनसाइड वी हैव 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, फाइन, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा, करेक्ट। सो दिस a एंड a गेट कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या हो गया, cot थीटा रखो तो या cos थीटा अपॉन साइन थीटा कर दीजिए, इसको cot को हमने cos बाई साइन कर दिया। नीचे हमें क्या मिलने वाला है, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर क्या होता है, दिस इज cosec स्क्वायर थीटा, रूट cosec स्क्वायर थीटा, एंड दिस बिकम्स cosec थीटा, करेक्ट। cosec थीटा को आप 1/sin थीटा लिख सकते हो, फाइन। ये हमने रफ में देख लिया, रूट अंडर 1 प्लस cot स्क्वायर इज cosec स्क्वायर थीटा and root of this is cosec theta. Now sin and sin get cancelled, what left, finally cos theta. So cos theta is the correct one, ठीक है। सो आप पे डिपेंड करता है कि आप कौन सी मेथडोलॉजी चूज करना चाहते हैं। क्वेश्चन को कैसे उन्होंने उल्टा कर दिया, उन्होंने बोला कि tan थीटा इक्वल्स टू a/x है, तो x अपॉन ये क्वांटिटी जो है किस ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के इक्वल होगी। तो हमने क्या किया, या तो आप a भी ले सकते हो या x भी ले सकते हो, इट्स योर कॉल। मैंने x ले लिया विच इज a/tan थीटा विच इज a cot थीटा। अब इस x की वैल्यू जो डिमांड है क्वेश्चन की उसमें सब्स्टिट्यूट किया, a cot थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cot स्क्वायर थीटा, a स्क्वायर कॉमन लिया एंड यू हैव यूज्ड द ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। फाइंड हियर। सो इस तरीके से क्वेश्चन जो है आपके CDS में इस तरह से घुमा दिए जाते हैं। आप में प्रेजेंस ऑफ माइंड और फॉर्मूला का बहुत बड़ा रोल है, आप फॉर्मूला को किस तरीके से कंट्रोल में रखते हो, करेक्ट।
आइए एक और सिचुएशन देखते हैं। इफ tan theta is equal to tan theta is given 1/√7। ठीक है, ये क्या है? tan theta है। यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। then the value of cosec square theta minus sec square theta upon cosec square theta plus sec square theta, इसकी वैल्यू चाहिए अपने को। इज ऑप्शंस में हमारे पास है 5/7, we have 3/4, we have 3/7 as well, and 1/12. Correct? These are the options. So now how we will proceed for this sum? Tan theta we have 1/√7। ठीक है, इस tan theta से सबसे पहले हम cot निकाल सकते हैं। cot theta is √7। ठीक है, अब आइए हमारे पास डिमांड में क्या है? cosec स्क्वायर और sec स्क्वायर। तो cot से हम cosec स्क्वायर पहुंच सकते हैं कैसे? 1 + cot स्क्वायर। ठीक है, 1 + cot स्क्वायर थीटा हम जानते हैं, डियर फॉर्मूला हमारे पास cosec स्क्वायर थीटा। सो 1 + √7 स्क्वायर √7 स्क्वायर, so this becomes 1 + 7 and this is 8। ये 8 हो गया। so cosec स्क्वायर थीटा केम 8। फाइन। अब tan थीटा हमारे पास क्या था? यहाँ से तो हम cosec स्क्वायर क्लियर कर लिए। tan थीटा भी है, tan थीटा था 1/√7। और हमें क्या और फॉर्मूला पता है? tan में एक रिलेशन है ना, 1 + tan स्क्वायर थीटा विच इज sec स्क्वायर थीटा। करेक्ट? देखो, आप tan थीटा से राइट एंगल वाले मेथड से भी जा सकते हो। मैं एम नॉट सेइंग कि वो गलत होगा। आपको tan थीटा राइट एंगल वाले मेथड से यूज करना है। 1/√7, फिर ये हाइपोटेन्यूज निकाल लो आप। ठीक है ना, 7√7, 7 + 1 स्क्वायर 8। और वहाँ से भी आप साइन कॉसिक सेक कॉसिक निकाल सकते हो। वो भी एक तरीका है और ये भी एक तरीका है। सो 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर, 1 + 1/7 हो जाएगा। दिस इज sec स्क्वायर थीटा विच विल कम 8/7। ठीक है, 8 आ गया cosec स्क्वायर थीटा एंड दिस। सो अब हम इसकी वैल्यूज चेक कर लें। cosec स्क्वायर थीटा इज 8 माइनस sec स्क्वायर थीटा कितना आ गया अपने को? 8/7। 8 माइनस 8/7 अपॉन 8 + 8/7। करेक्ट? देख लें इसका सिंप्लीफिकेशन करके क्या आता है। 56 - 8 48 and 7 8 are 56, 8 64, 8 7 7 get cancelled, 16 3 16 4, so the answer is nothing but 3/4। so 3/4 is the correct answer। अब इट्स योर कॉल डियर, कहाँ किस मेथड से आप चाहते हैं कि ट्राइंगल मेथड से आप करें, वहाँ आपका टाइम बच रहा है, गो विद दैट मेथड। ठीक है, अदरवाइज जो मैंने ये किया है यहाँ पे, अगर आप, मैं समझा रहा हूँ इसलिए टाइम लग रहा है, जब आप करेंगे तो हो सकता है मेरे से भी जल्दी कर लेंगे आप। फाइन, यू विल डू विदिन 30 सेकेंड ऑफ सच टाइप ऑफ सम। करेक्ट? सो I believe you understood tan theta equals to 1/√7। then the value of these you can easily calculate। तो मैंने क्या किया, tan को पहले cot बना लिया, cot से 1 + cot स्क्वायर वाला फॉर्मूला यूज किया। so we have cos square is 8 and then we have to choose tan theta which is given 1/√7। 1/√7 है, this is 1/√7। ठीक है, 1 + tan स्क्वायर sec स्क्वायर 8/7 and then you have this value, substitute करके we got the final answer। फाइंड हियर। आइए और भी कुछ सिचुएशन देखते हैं। लुक एट दिस, जो सीडीएस में इस तरह से ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वी हैव वन क्वेश्चन, इफ tan theta equals to x/y, correct? then the value of x sin theta
माइनस वाई कॉस थीटा अपॉन एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा। ठीक है, इसकी वैल्यू चाहिए, ब्रैकेट है ये। फाइन, ऑप्शंस दिए हुए हैं, बड़े से ऑप्शन है, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर वैसा जो भी है। सो नाउ अब हमें ये वैल्यू से tan थीटा इक्वल्स टू एक्स वाई बाई है, देन द वैल्यू ऑफ एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा चाहिए। तो अब देयर अब कैसा किया जा सकता है, इसके अंदर एक सिचुएशन ऐसा दिख रहा है कि अगर मैं इस न्यूमरेटर में जो हमारा क्वेश्चन है एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा, करेक्ट, डिवाइडेड बाय, मैं इसको डिवाइड कर दूं किससे, लेट्स से मैं इसको कॉस थीटा से डिवाइड कर देता हूँ। ठीक है, किससे, कॉस थीटा से। न्यूमरेटर को भी और डिनोमिनेटर को भी करना पड़ेगा, ठीक है ना। एक्स साइन थीटा माइनस वाई कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा। नाउ द क्वेश्चन इज कि वाई यू हैव डिवाइडेड कॉस थीटा, साइन थीटा से भी आप कर सकते हो और मैंने कॉस थीटा से लिया, दोनों से कर सकते हो आप। सो दिस इज इक्वल टू, ये अपना कहाँ से आया, यहाँ से आया जो डिमांड है। अब बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं tan थीटा बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, जिसकी वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स बाई वाई। लुक एट दिस, साइन बाई कॉस क्या होगा, एक्स tan थीटा ये, माइनस कॉस कॉस कैंसिल तो ये y रह जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी y। डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, एक्स tan थीटा, ठीक है, सॉरी ऊपर प्लस दे रखा है, दिस इज प्लस, प्लस है यहाँ, प्लस नीचे क्या हो गया, एक्स tan थीटा माइनस वाई। ठीक है, सो अब देखिए tan थीटा की वैल्यू डाल दीजिए, तो x इंटू एक्स अपॉन वाई, फाइन, x इंटू एक्स अपॉन वाई प्लस दिस इज y अपॉन x इंटू एक्स बाई वाई, tan थीटा की वैल्यू एंड प्लस y। सो आई बिलीव आपको समझ में आया, इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे हमारा माइनस है, ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, वाई और वाई दोनों का कैंसिल, एलसीएम ले लिया हमने, ठीक है ना, एलसीएम ले लिया इधर, तो ये माइनस है नीचे का। सो द आंसर केम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसलिए मैं बोला थोड़े ऑप्शन बड़े बड़े दिए हुए हैं, सो दिस ऑप्शन इज द करेक्ट वन। तो हमने क्या किया, हमने साइन और कॉस नहीं निकाला, क्योंकि साइन और कॉस निकालेंगे तो वो रूट में बैठ जाएगा और प्रॉब्लम कर देगा। तो आपने इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ईदर यू कैन डिवाइड बाई साइन और कॉस। अब चक्कर है कि आप बोलेंगे सर साइन से होता तो क्या होता, तो कॉस बाई साइन कॉट बन जाता, कॉट थीटा बनता, और कॉट थीटा आपको निकल ही जाता, टैन थीटा एक्स बाई वाई है तो कॉट थीटा वाई बाई एक्स। ठीक है, व्हेन इट विल बी पॉसिबल, तब जब आपने साइन थीटा से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड किया होता। ठीक है, so both the situation में, both the way you can reach the same answer, either you divide by cos theta to numerator as well denominator, or you divide by sin theta से numerator और denominator को divide करते, तो दोनों ही केस में you will have same answer, which is x square plus y square upon x square minus y square. Find here. Now look at this. सो दिस इज व्हाट अ नेचर ऑफ सम। सीडीएस बड़े बेसिक क्वेश्चन को पूछती है, आप कितना टाइम लेते हैं, दैट इज व्हाट वेरी इंपॉर्टेंट, कितने जल्दी कर सकते हैं, दिस इज व्हाट अ स्मार्ट वर्क इन सीडीएस डी। ठीक है, नाउ लुक एट दिस, सम ऑफ द सिचुएशन ऐसा है, अभी मैं एक सिचुएशन लूँ, इफ tan थीटा, ठीक है, tan थीटा प्लस sec थीटा, this is given to be x, then tan थीटा क्या होगा, what is going to be tan थीटा, ऑप्शन भी लिख लिया जाए, this is 2x upon x square minus 1, we have 2x upon x square plus 1, correct, we have third option x square plus 1 upon 2x, and fourth option x square minus 1 upon 2x, correct। सो क्वेश्चन के अंदर क्या है, इफ tan थीटा प्लस sec थीटा इज x, तो tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, ठीक है डियर। तो आइए अब हमें याद करना होगा,
हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था सेक और टैन में रिलेशनशिप, वो क्या थी, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा विच इज 1, ठीक है। सो सेक थीटा माइनस टैन थीटा ये क्या होता है, 1 अपॉन सेक थीटा प्लस टैन थीटा। कैन वी राइट, हमने देखा था फॉर्मूला में, करेक्ट। सो दिस इज गोइंग टू बी 1/x, सेक थीटा माइनस टैन थीटा क्या आ गई, 1/x। इसको इक्वेशन 2 कर लेते हैं, और ये जो क्वेश्चन दिया था इसको मैं 1 ले लेता हूँ। अब दोनों को ऐड कर देता हूँ तो क्या होगा, टैन और टैन गेट कैंसिल, ठीक है। लेकिन हमें टैन चाहिए तो आप क्या कीजिए, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। क्या कर दीजिए, सब्ट्रैक्ट, फर्स्ट और सेकंड को। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे आप तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा। सेक एंड सेक गेट कैंसिल, टैन प्लस टैन क्या होगा, 2 टाइम्स ऑफ टैन थीटा, एंड हियर इट इज x माइनस 1/x आएगा, ठीक है। ध्यान से देखिए, सब्ट्रैक्ट किया। सो डियर टैन थीटा वी विल हैव नाउ एक्स स्क्वायर, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x, और ये 2 इधर आके इनटू हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी द टैन थीटा। द ऑप्शन, द डी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। फिर से देख लीजिए पूरी क्वेश्चन को। तो ऐसे सम सीडीएस पूछते हैं डियर, और इसमें कई बच्चे बहुत टाइम किल करते हैं ऐसे सम बनाने में। सो टैन थीटा प्लस सेक थीटा इज एक्स, तो टैन थीटा की वैल्यू, या इसमें कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज मान लो सेक थीटा पूछ दिया, इसमें साइन थीटा पूछ सकते हैं, कॉस थीटा पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। ये जो अगर आप ये रिजल्ट को नहीं यूज करेंगे देन इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ठीक है। फॉर्मूला जो मैंने आपको उस समय फॉर्मूला कराते समय बोला था कि अपने को ये सेक थीटा माइनस टैन थीटा 1/सेक थीटा प्लस टैन थीटा याद रहना चाहिए। प्लस है अगर यहाँ तो ये माइनस। फिर हमने क्या किया, इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है ना, एंड देन वी हैव टैन थीटा इज एक्स स्क्वायर माइनस 1/2x। फाइन। सो आई बिलीव यू अंडरस्टूड। सी द नेचर ऑफ द सम, ये सीडीएस के क्वेश्चन का नेचर होता है, ऐसे क्वेश्चन वो पूछते हैं डेयर। फाइन, चलिए आइए अभी नेक्स्ट सिचुएशन में आते हैं। लुक एट दिस, नेक्स्ट प्रॉब्लम सोच रहे हैं। यस, एक बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन होता है, ठीक है। क्वेश्चन में ऐसे दिया हुआ है कि इफ 3 sin x, ठीक है, 3 sin x प्लस 5 cos x is equal to 5, fine, then the value of 3 cos x minus 5 sin x, 3 cos x minus 5 sin x का होल स्क्वायर, ठीक है, ये होल स्क्वायर है। थ्री साइन एक्स माइनस 3 cos x माइनस 5 sin x का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अपने को पता करनी है, ठीक है। व्हाट शुड बी द वैल्यू? ऑप्शन अगर मैं देखूं तो 2, वी हैव 4, वी हैव 5 एंड 9, these are the option, correct? So now look at this, when we have such situation, तो आप थोड़े क्वेश्चन और डिमांड जो गिवन है और जो क्वेश्चन है उसमें रिलेशनशिप देखो। यहाँ sin x का कोफिशिएंट क्या है, 3 है, यहाँ sin x का कोफिशिएंट 5 है, cos x का कोफिशिएंट यहाँ 5 है, cos x का कोफिशिएंट 3 है, इंटरचेंज है, ठीक है ना, इंटरचेंज करी हुई है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको समझने की। तो जब इस तरह से साइन और cos x के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो तो या तो स्क्वायर बोले या क्यूब बोले या कुछ भी बोले, तो इस तरह के सम को करने के लिए आपने करना क्या है यार, ये जो क्वेश्चन है इसको आप ऐसा ले लीजिए कि 3 cos x माइनस 5 sin x, दिस 5 sin x, इस पूरे को मैंने ले लिया लेट से t लेफ्ट, करेक्ट। और हमारे पास ये है 3 sin x प्लस 5 cos x, ये हमारे पास 5 डी भी है, करेक्ट।
तो मुझे अब चाहिए क्या, टी स्क्वायर की वैल्यू चाहिए ना। यहाँ हमें क्या दिख गया, क्वेश्चन अपने को टी स्क्वायर पूछ रहा है, व्हाट इज टी स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, इसको स्क्वायर करूँगा दोनों साइड, इसको भी स्क्वायर करूँगा, वैसे दिया भी था स्क्वायर वो, और इसको भी स्क्वायर करूँगा जो हमारे पास दिया हुआ था, और इसको भी स्क्वायर करूँगा, ठीक है। और दोनों को ऐड कर दूंगा, स्क्वायर करके क्या करूँगा, ऐड, ठीक है। तो स्क्वायरिंग दिस, और ये तो ऑलरेडी स्क्वायर था तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिए, या मैंने केवल टी लिया था तो स्क्वायर कर दिया, स्क्वायरिंग बोथ साइड एंड एडिंग। जब आप ऐड करोगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर देखो 9 कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है, प्लस 25 साइन स्क्वायर एक्स, a माइनस बी का होल स्क्वायर कर रहे हैं आप, साइन स्क्वायर एक्स, माइनस 30 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स 2ab, ठीक है, प्लस प्लस, अब ये वाला ऐड होगा क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट साइड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड। दिस इज गोइंग टू बी 9 साइन स्क्वायर एक्स प्लस 25 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस ये आ जाएगा 30 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, करेक्ट, 30 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इज इक्वल्स टू, ये हो गया हमारा डियर टी स्क्वायर प्लस 25, फाइन, राइट हैंड साइड ऐड हो गया क्योंकि हमने क्या किया है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग बोथ साइड, करेक्ट। अब आइए 30 साइन एक्स कॉस एक्स और 30 प्लस साइन एक्स गेट कैंसिल, ये पूरी टर्म कैंसिल होगी। अब 9 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 9 साइन स्क्वायर एक्स, 9 कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, 25 साइन स्क्वायर एक्स 25 कॉस स्क्वायर एक्स, 25 कॉमन लिया, करेक्ट, 25 कॉमन लिया तो 25 कॉमन लिया तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स 1, सो दिस लेफ्ट 25 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर प्लस 25, फाइन। अब ये 25 so the answer came t square is 9, और t क्या है अपना 3 cos x माइनस 5 sin x था, और t स्क्वायर यानी जो स्क्वायर था, उसका आंसर 9 आ गया। तो देखो क्वेश्चन कहने का मतलब है कि आपसे वो अप्रोच क्या चाहता है, आप किस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करें। आप इधर उधर भटक गए तो क्वेश्चन आपको बहुत सारा टाइम ले लेगा, ठीक है। तो अपने को रिलेशनशिप देखना पड़ा कि साइन का कोफिशिएंट 3, कॉस का कोफिशिएंट 5, यहाँ उल्टा है। तो ये इस तरह के जो साइन कोस के कोफिशिएंट रिवर्स दिए गए हैं, उल्टे में दिए गए हैं, तो आप में स्ट्रैटेजी यही होती है कि स्क्वायरिंग और एडिंग करते हैं, सो दैट देखो ये माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये प्लस बी होल स्क्वायर हुआ, तो क्या होता है कि 2ab वाला टर्म माइनस 2ab और प्लस 2ab ये दोनों कैंसिल हो जाता है, एंड देन वी हैव साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला निकल के आ जाता है, एंड सो दिस वे वी कैन गेट द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर, ठीक है। एंड टी व्हाट वी हैव सेड 3 cos x माइनस 5 sin x लिया था हमने टी, फाइन। So now look at this, we have another situation, we'll see, एक और सिचुएशन देखते हैं फटाफट। एक क्वेश्चन है डियर, ये सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है ना। क्वेश्चन है कि 1 माइनस, ठीक है, tan थीटा होल स्क्वायर प्लस 1 प्लस tan थीटा होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू, ठीक है। ऑप्शन दिए हुए हैं 2 tan स्क्वायर थीटा, है ना, ऑप्शन लिखने की जरूरत नहीं है, आप फटाफट इसको समझ के लेंगे। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर हो गया डियर, a प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 tan थीटा। देखो ऐसे भी सम सीडीएस पूछ देती है, एंड 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 tan थीटा, करेक्ट। तो अपने पास क्या निकल गया, 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, करेक्ट, tan है, ये क्या निकल जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा, दैट्स इट, ये ऑप्शन में था। तो ये बेसिक a माइनस बी होल स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर पे ऐसे सम आप कर जाते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस जो रहते हैं, आई बिलीव बहुत डिफिकल्ट नहीं होंगे आपको समझने के लिए, करेक्ट। आइए अब हम थोड़े इसी मेथडोलॉजी में बहुत सारे सम बनाए जाते हैं, फिर भी हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। लुक एट दिस, वी हैव वन प्रॉब्लम, 5 cos थीटा
ये भी CDS को आया हुआ समय डियर, 5 cos थीटा माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 5 साइन थीटा, करेक्ट, माइनस 3 प्लस 5 साइन थीटा, करेक्ट, अपॉन this is given 4 plus 5 cos theta, cos theta। इसकी वैल्यू चाहिए, ऑप्शंस में दिए हुए हैं 0, वी हैव अनदर ऑप्शन 1, अनदर ऑप्शन इट इज गिवन 1/2 एंड 1/4, ठीक है। ये हमारे 4 ऑप्शन है, ठीक है डियर। तो हमें इसकी वैल्यू चाहिए, करेक्ट। हाउ वी विल प्रोसीड, लुक एट दिस, क्या अप्रोच होना चाहिए। तो अप्रोच तो स्ट्रेट अवे दिख रहा है कि आपको देयर एलसीएम ही लेना पड़ेगा, क्योंकि और कुछ में आप चेंज तो कर नहीं पा रहे हैं। सो विल गो फॉर एलसीएम, बिकॉज दोनों फ्रैक्शन है, फ्रैक्शन का एडिशन और सब्ट्रैक्शन कैसे होता है, एलसीएम से ही। सो 3 माइनस 5 साइन थीटा, करेक्ट, इनटू 4 प्लस 5 कॉस थीटा। तो ये बस एक अलजेब्रा है जो अच्छे से करना है, और इसमें बच्चे गलती करते हैं। So here we have 5 cos theta minus 4 into 4 plus ये आ गया 5 cos theta, ठीक है, माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा डियर, 3 प्लस 5 साइन थीटा इंटू ये आ जाएगा 3 माइनस 5 साइन थीटा, करेक्ट। एलसीएम ले लिया हमने। अब अपने को a प्लस बी और a माइनस बी देख लें आप, ठीक है। सो a आप 5 cos थीटा को लो, b इसको लो, तो a माइनस बी, और ये a है, इसको मैंने b लिया, तो a प्लस बी, ये हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 25 cos स्क्वायर थीटा माइनस 16, करेक्ट, माइनस यहाँ भी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ले लें आप, तो 9 माइनस 25 साइन स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में, डिनोमिनेटर को अभी इंटू नहीं करें, उसको लास्ट में देखेंगे, कोई ज़रूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो नहीं भी कर सकते हैं। 3 माइनस 5 साइन थीटा इंटू 4 प्लस 5 कॉस थीटा, करेक्ट। अब आइए यहाँ से ये ब्रैकेट ओपन करोगे आप, तो क्या मिलने वाला है अपने को, लुक एट दिस, 25 cos स्क्वायर थीटा, ये माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं 25 साइन स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ, ठीक है। और ये माइनस 16 और माइनस 9, इट बिकम्स माइनस 25। डिनोमिनेटर हमने सेम रखा है, फिर से आ जाइए। अब ये 25 कॉमन ले लिया, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 एंड माइनस 25, नीचे डिनोमिनेटर सेम रखा है, ये तो 0 आ गया, एंड 0 अपॉन तो ये 3 माइनस 5 साइन थीटा इंटू 4 प्लस 5 कॉस थीटा लिखा था, इसका कोई रोल नहीं रह गया, ये क्या दे दिया आपने को, 0, फाइन। सो 0 इज द करेक्ट ऑप्शन। कहने का मतलब यू हैव टू बी careful while simplifying these basic trigonometric, and where there you have to use cos square theta plus sin square theta, which is 1, correct, this is going to be 1। तो डियर ऐसे सम्स होते हैं सीडीएस में। हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और भी प्रॉब्लम्स, कुछ और भी कंसेप्ट बेसिक ट्रिग्नोमेट्री के सीखेंगे, ठीक है। कुछ कंपाउंड एंगल, मल्टीपल एंगल्स भी हमें करने हैं, दैट वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट क्लास, ठीक है, एंगल वगैरह सब कुछ। सो मीनवाइल टुडे ऑल ऑफ यू गो थ्रू ऑल दीज सम्स, ठीक है। और मैं कुछ सम्स आपको होमवर्क में भी प्रोवाइड करूँगा इन अ ग्रुप, उस ग्रुप में आप वो क्वेश्चन मैं व्हाट्सएप पे भेजूँगा, ठीक है। एंड दोज सम्स यू ट्राई विथ योर सेल्फ, और एमसीक्यू होगा वो क्वेश्चन, तो आप हमें आंसर भी पोस्ट करेंगे व्हाट्सएप ग्रुप पे। पोस्ट योर आंसर कहाँ पे, व्हाट्सएप ग्रुप पे आप पोस्ट करेंगे आंसर को, ठीक है। जैसे मैं एक 10 क्वेश्चन दिया, ठीक है, एमसीक्यू, तो उसको सॉल्व करेंगे आप, और उनके आंसर्स यू कैन पोस्ट मी इन व्हाट्सएप ग्रुप, आवर सीडीएस बैच का जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप पोस्ट करेंगे।
और जिन बच्चों को कोई डाउट होगा, यू कैन आस्क दिस आई एम नॉट गेटिंग, दिस आई एम नॉट गेटिंग, सो आई कैन सॉल्व एंड आई कैन प्रोवाइड यू द सोल्यूशन. ठीक है. So with this note, I am going to conclude today's lecture. Best of luck to all of you. And I forget to tell you the first thing, that welcome all of you in Apex Careers. This is one of the best institute in entire India, where we produced lot of NDA cadets and CDS students. So enjoy learning with Apex team. Best of luck and do best for your future. Thank you very much.